شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالے سے کہ اس وقت شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس جاری ہے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے خطاب بھی کیا گیا۔ اور آپ کو یہ بتائیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم SCO کا سربراہی اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے۔ رکن ممالک کے سربراہان اور نمائندے تاریخی اجلاس میں شریک ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے صدارتی خطاب کے بعد مختلف ممالک کے رہنما اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اجلاس کے بعد مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا جائے گا۔ SCO کانفرنس کی سائیڈ لائنز پر وزیر اعظم شہباز شریف سے روسی وزیر اعظم سمیت مختلف عالمی شخصیات سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ SCO اجلاس میں معیشت، تجارت، ماحولیات اور سماجی و ثقافتی روابط کے شعبوں میں جاری تعاون پر تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا اور تنظیم کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کا یہ تاریخی اجلاس ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف کے خطاب کے بعد اب دیگر ارکان کی تقاریر بھی جاری ہیں۔ SCO اجلاس کے بعد مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا جائے گا۔ اب سے کچھ دیر پہلے ہی بھارتی وزیر خارجہ کی جانب سے اجلاس میں خطاب کیا گیا اور اجلاس کی سائیڈ لائنز پر وزیر اعظم شہباز شریف سے عالمی رہنماؤں کی ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ اس وقت شنگھائی تعاون تنظیم SCO کا سربراہی اجلاس جو ہے وہ جاری ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی خطاب کیا اور اس وقت دیگر رہنماؤں اور دیگر وزیر اعظم کی جانب سے جو ہے وہ اس وقت خطاب جاری ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس وفاقی دارالحکومت میں شروع ہو گیا ہے۔ افتتاحی سیشن سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے افتتاحی خطاب کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شریک ہونے والے تمام ممالک کے سربراہان کو اسلام آباد میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ SCO سربراہ اجلاس کا انعقاد ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ SCO ممالک دنیا کی آبادی کا 40% ہیں اور پائیدار ترقی کے لیے علاقائی تعاون اور روابط کو فروغ بہت ضروری ہے۔ آج کا یہ اہم اجلاس علاقائی تعاون کو بڑھانے کا ایک اہم موقع فراہم کر رہا ہے۔ ہم نے اپنے لوگوں کو بہتر معیار زندگی اور سہولیات فراہم کرنی ہے، جس کے لیے دستیاب مواقع سے استفادہ کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ ہمیں معاشی ترقی، استحکام اور خوشحالی کے لیے مل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ ہم عالمی منظرنامے میں تبدیلی اور ارتقاء کا سامنا کر رہے ہیں۔ موجودہ صورتحال اجتماعی اقدامات کی متقاضی ہے اور ہم نے اجتماعی دانش کو بروقار لاتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ آج سیاحتی روابط، گرین ڈیولپمنٹ کے شعبوں میں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے افتتاحی خطاب میں کہا کہ معاشی تعاون کے لیے SCO ممالک کو نئی حکمت عملی پر غور کرنا ہوگا اور انہوں نے یہ کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات اس وقت پوری دنیا پر مرتب ہو رہے ہیں، جبکہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2022 کے سیلاب کا انہوں نے ذکر کیا اپنے خطاب میں۔ انہوں نے کہا کہ 2022 کے سیلاب سے پاکستان بری طرح متاثر ہوا اور لاکھوں لوگ کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہوئے، جبکہ لاکھوں ایکڑ زمین تباہ ہو گئے، جس سے زراعت متاثر ہوئی۔ سیلاب سے تباہی کے باعث معیشت کو بھی نقصان پہنچا۔ SCO ممالک کو اس حوالے سے بہتر حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان علاقائی ترقی اور استحکام کے لیے انتہائی اہم ملک ہے، لیکن افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال روکنا ہوگا۔ عالمی برادری افغانستان میں انسانی بنیادوں پر امداد پر توجہ دے۔ خطے کے ممالک میں ٹرانسپورٹ اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کے بہت مواقع موجود ہیں۔ پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ علاقائی ترقی کے لیے بیلٹ اینڈ روڈ انتہائی اہم منصوبہ ہے۔ مزید انہوں نے یہ کہا کہ خطے سے غربت کے خاتمے کے لیے اقدامات کو ترجیح دینا ہوگی۔ غربت معاشی نہیں بلکہ اخلاقی مسئلہ بھی ہے، لہٰذا غربت کے خاتمے کے لیے بنیادی وجوہات کے حل پر توجہ دینا ہوگی۔ ماحولیاتی خطرات سے نمٹنے کے لیے اجتماعی اقدامات ضروری ہیں۔ اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے کانفرنس کے مہمانوں کا استقبال کیا تھا اور جیسے ہی مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا، وزیر اعظم نے خود وہاں پر کھڑے ہو کر مہمانوں کا استقبال کیا۔ جناح کنونشن سینٹر میں اس وقت SCO سمٹ جاری ہے۔ اس سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف نے جناح کنونشن سینٹر میں جتنے بھی مندوبین تھے اور سربراہان مملکت تھے ان کو مدعو کیا تھا اور ان کو ویلکم کیا۔ اجلاس میں شریک رکن ممالک کے بیشتر سربراہان حکومت اور وزراء گزشتہ روز ہی وفاقی دارالحکومت پہنچ چکے تھے اور آج اس وقت
सरकारी दौरे पर मौजूद हैं और आज SCO समिट का आखिरी रोज़ होगा और आज शाम तक SCO समिट जो है वह ख़िताम पसीर हो जाएगी। वज़ीर आज़म के ख़िताब के बाद जो दीगर सरबराहान ममलिकत हैं उनका ख़िताब भी जारी है और जिस तरह से कि बताया गया था कि बारी बारी तमाम सरबराहान ममलिकत जो है वह ख़िताब करेंगे और इसके बाद एक बाज़ाब्ता एलामिया भी जारी किया जाएगा और इख्तितामी जो कलमात होंगे वो भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अदा करेंगे और जिसके बाद एक एलामिया जारी किया जाएगा, मीडिया को भी उससे आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी खिताब हुआ और उन्होंने ये कहा कि अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में खुश आमदीद कहा गया उनकी जानिब से और मज़ीद कहा कि हम सरबराहान मुमलिकत के SCO काउंसिल की शानदार तकरीब की मेज़बानी को अपने लिए एज़ाज़ समझते हैं। इस वक्त दीगर वज़ीर आज़म की जानिब से भी इस वक्त इजलास से खिताब जारी है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताही खिताब किया। मज़ीद उन्होंने कहा कि आपकी यहाँ मौजूदगी हमारे अवाम की उमंगों पर पूरा उतरने के हमारे मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करती है ताकि हम SCO खित्ते की पायदार तरक्की और खुशहाली के लिए मजमूई सिक्योरिटी और दो तरफ़ा मफाद पर मबनी ताउन को फ़रोग दे सकें। आपको अपडेट करें और बताते चले कि शंघाई ताउन तंजीम SCO का सरबराही इजलास इस्लामाबाद में इस वक्त जारी है। SCO इजलास में रुकन ममालिक का खिताब जारी। हमीद लंगरा हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद उनसे जान लेते हैं। जी हमीद, अपडेट कीजिएगा इजलास के हवाले से। जी, शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास जो है वो इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो है वो जारी है। वो इस इजलास को चेयर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से जब ये मेहमान कन्वेंशन सेंटर पहुँचे तो वहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और डिप्टी वज़ीर आज़म ने इनका इस्तकबाल किया। उसके बाद बाकायदा इस जो है सरबराहान का एक जो है वो सेशन का आगाज़ हुआ और इफ्तिताई कलमात में वज़ीर आज़म का ये कहना था कि उन्होंने बड़े जामे अंदाज में अपने ख़िताब में मुख्तलिफ जो मसाइल हैं ख़ित्ते को दरपेश हैं, जिसमें गुरबत है, क्लाइमेट चेंज है, सेहत के शोबे के मसाइल हैं, ख़वातीन के हवाले से और उनको जो समाजी मसाइल दरपेश हैं उसके तकरीबन तमाम मसाइल पर वज़ीर आज़म की जानिब से गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म का अपने ख़िताब में ये कहना था कि मुल्क तमाम ख़ित्ते के ममालिक जो है कि अगर वो मिलकर चलें और इन मामलात को देखा जाए और कोऑर्डिनेशन से चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए तो मामलात बेहतर हो सकते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के ख़िताब के बाद बाकायदा जो है वो इसका सिलसिला शुरू हो गया और इस वक्त मुख्तलिफ जो नुमाइंदे हैं मुख्तलिफ ममालिक के वो अपना अपना ख़िताब जो है उनका सिलसिला जारी है। इसमें जब इसके साथ साथ यहाँ पर जो मुख्तलिफ मुल्कों से वफूद आए हुए हैं, ख़ासकर सहाफ़ी आए हुए हैं, उनके लिए पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में जो है वो मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर कायम किया गया है। यहाँ पर जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक के रुकन ममालिक के जो सहाफ़ी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो यहाँ से कवरेज कर रहे हैं। इनकी के लिए अब से कुछ देर पहले जो है वो यहाँ पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी आए। उन्होंने उन तमाम सहाफ़ियों से बातचीत की और यहाँ पर जो दी जाने वाली सहूलियात हैं उसके हवाले से उन्होंने जो मुख्तलिफ ममालिक के सहाफ़ी हज़रात हैं उनसे बातचीत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ का ये कहना था कि एक अरसे के बाद पाकिस्तान में एक बड़ा इवेंट हुआ है और हुकूमत की ये कोशिश थी कि इस तरह के हालात के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान को मुख्तलिफ इशूज़ दरपेश थे उसके अंदर एक इवेंट करवाना जो है वो एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन हुकूमत ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और ये कामयाब इवेंट अब तक जा रहा है। हमीद ये बताइएगा, आप मीडिया सहूलत सेंटर में इस वक्त मौजूद हैं और दीगर भी मीडिया यहाँ पर मौजूद है, जो वफूद आए हैं उनके साथ मीडिया की एक टीम भी आई है, तो उनका क्या कहना है इंतज़ामात के हवाले से और समिट के हवाले से, उनकी क्या राय? जी, यहाँ के जो रुकन ममालिक के मुख्तलिफ सहाफ़ी हज़रात आए हुए हैं उनमें से बाज़ की जानिब से ये जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इस बात पर इज़हार किया गया था कि हमें जहाँ कन्वेंशन सेंटर तक एक्सेस क्यों नहीं की गई। ख़ास तौर पर भारतीय सहाफ़ियों की जानिब से ये नुक्ता उठाया गया था, लेकिन इसके हवाले से जो ओवरऑल एक SOP बनी हुई है उसके मुताबिक जो है वो डील किया जा रहा है और उनको यहाँ पर फैसिलिटेट किया जा रहा है। यहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक के जो सहाफ़ी
हज़रात उनसे हमारी गुफ्तगू हुई है, उनका वो ओवरऑल यहाँ पे जितनी भी सहूलियात इस मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर के अंदर जो दी जा रही हैं उससे वो मुतमईन नज़र आए हैं। इसके साथ साथ यहाँ से जो है वो कनेक्टिविटी जना कन्वेंशन सेंटर की भी डिजिटली की गई है, और जो वहाँ पे खिताबात हो रहे हैं और जो वहाँ पे सरगर्मियाँ हो रही हैं उसको भी लम्हा ब लम्हा यहाँ से देखा जा सकता है और उसको रिपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए शायद ये इक़दामात उठाए गए हों कि जिन्हें कन्वेंशन सेंटर तक एक्सेस नहीं है, लेकिन इस फैसिलिटेशन सेंटर में तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं मीडिया के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए अब मुख्तलिफ ममालिक के जो वफूद आए हैं, अब जैसे रशिया का वफ्द आया है उसके अंदर तकरीबन 300 के करीब लोग हैं और उसके अंदर सिर्फ सहाफ़ती वफ्द जो है वो 58 अरकान पर मुश्तमिल है। तो ऐसे में इसी तरीके से चाइना से भी एक बड़ा डेलीगेशन आया है, किर्गिस्तान का भी बड़ा डेलीगेशन आया है। तो उन लोगों को उसी तरीके से SOPs के तहत जो शंघाई ताउन तंजीम के लिए SOPs बनाए गए थे उसके अकॉर्डिंगली डील किया जा रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी जहाँ जहाँ इनके लिए रिहाइश का बंदोबस्त किया गया, इनके हवाले से उस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा गया है कि नंबर एक तो इनकी सिक्योरिटी का ख़ास ख्याल रखा गया है, नंबर 2 कि इनको कोई तकलीफ़ या परेशानी ना हो। और यहाँ पर भी इस सहूलत सेंटर के अंदर भी वो तमाम लवाजमात रखे गए हैं कि यहाँ से बैठ कर अपना काम जो है वो आसानी के साथ किया जा सकता है। ये जानना चाहेंगे जैसे कि एक स्पेशल मीडिया सहूलत सेंटर जो है वो कायम किया गया है, तो आपसे ये जानना चाहेंगे जैसे कि गैर मुल्की सहाफ़ी भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो यकीनन आपकी उनसे गुफ्तगू हुई होगी, बातचीत हुई होगी, तो उनके इन तमाम मामलात पर क्या तासुरात हैं और क्या तासुरात उनकी जानिब से दिए गए? जी देखिए, मैं पहले तो आपको अपने कैमरामैन उमैर से कहूँगा कि ये आपको यहाँ पे दिखाए कि इस वक्त जो सूरत हाल है यहाँ पर ये मुख्तलिफ जो है रुकन ममालिक के सहाफ़ी हज़रात जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। इनको लैपटॉप्स दिए गए हैं, इनको इंटरनेट की एक्सेस दी गई है, इनके लिए चाय, कॉफ़ी, हाई टी सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। इस वक्त ये वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात जो है वो अताउल्लाह तारड़ साहब इधर मौजूद हैं और वो गाय बगाए इन सब के साथ बातचीत भी कर रहे हैं और इनको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। और यहाँ पे जितने साथियों से हमारी बातचीत हुई उनकी जानिब से जो रुकन ममालिक के सहाफ़ी आए हुए हैं उनकी जानिब से कोई ऐसी बात नहीं की गई कि खुदा न खासा ये कहा जाए कि वो हमारी मेज़बानी से या पाकिस्तान की मेज़बानी से नाला नज़र आते हैं। वो बड़े कंफर्टेबल हैं, बड़े खुश हैं और बड़े मुतमईन होकर यहाँ से वो अपना काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल हमीद, और ये बड़े एजाज़ की बात है कि इस SCO समिट को पाकिस्तान चेयर कर रहा है। यकीनन ये भी जब ये इख्तिताम पजीर होगा तो एलामिया भी जारी होगा। और क्या मीडिया से गुफ्तगू के लिए, मीडिया से इंटरेक्शन के लिए कोई इंतजामात किए गए हैं, कुछ बताया गया है? जी बिल्कुल, अभी जो है वो एक सेशन चल रहा है कि जिसके अंदर तमाम जो मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदगान हैं या हेड ऑफ़ स्टेट्स हैं वो अपना जो है वो अपना खिताब कर रहे हैं बारी बारी। इसके बाद जो है वो एजेंडे की जो आज का था उसकी मंजूरी, जिसको टेकअप किया गया था उसकी मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद वज़ीर आज़म जो है वो इख्तितामी कलमात अदा करेंगे। और उसके बाद पाकिस्तान के डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और SCO के सेक्रेटरी जनरल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया से गुफ्तगू करेंगे, मीडिया से के साथ बात करेंगे। और उसके बाद जो है वो आज की इस कॉन्फ्रेंस का एलामिया जो है वो तकरीबन 4 बजे के करीब का वक्त दिया गया है कि 4 बजे के करीब जो है वो एलामिया जो है वो जारी कर दिया जाएगा। और उसके बाद वज़ीर आज़म की जानिब से इस तमाम जो वफूद को जो है वो ज़हराना भी दिया जाएगा। और वो उसके बाद ये ज़हराने के बाद जो है वो फॉर्मली ये इवेंट जो है वो क्लोज़ हो जाएगा और फिर इन जो वफूद हैं मुख्तलिफ ममालिक के, इनकी रवानगी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अलबत्ता चीन के वज़ीर आज़म जो है वो पाकिस्तान के, चूँकि उनका दौरा कल तक है और वो कल तक यहाँ पर मुक़ीम रहेंगे। इसके अलावा जो दीगर हेड ऑफ़ स्टेट्स हैं एक दो, उनकी भी जो है वो चूँकि जो विज़िट है वो कल तक है तो वो उस वजह से उनका भी यहाँ पर क़याम होगा। लेकिन ये इवेंट जो है वो जैसे ही अलामिया आएगा 4 बजे के करीब तो उसके बाद ये इवेंट क्लोज़ हो जाएगा। और इवेंट क्लोज़ होने के बाद क्या तमाम मेहमान जो हैं सरबराह ममलिकत वो आज ही रवाना हो जाएंगे सिवाय चीन के वज़ीर आज़म के?
جی دیکھیں، اس حوالے سے مختلف ٹائم جو ہے وہ رکھے گئے ہیں اور مختلف اوقات کے دوران جیسے ہی یہ سیشن کلوز ہوتا ہے اس کے بعد زورانہ ہونا ہے، اور زورانہ کے بعد جو ہے ان کی روانگی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس میں جو اب تک اطلاعات ہیں یہی کہا جا رہا ہے کہ جو دو ہیڈ آف اسٹیٹس جو یہاں پر موجود ہیں، جن میں ایک چینی وزیر اعظم ہے اور ایک اور جو ملک کے سربراہ ہیں، وزیر اعظم ہیں، وہ شاید کل تک یہاں پر رکیں گے اور ان کی انگیجمنٹس ہیں وہ اپنی جو ہے وہ انگیجمنٹس کمپلیٹ کرنے کے بعد جائیں گے۔ باقی رکن ممالک کے وفود کی روانگی کا سلسلہ جو ہے وہ آج سے شروع ہو جائے گا اور یہ کل تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اس حوالے سے بھی مکمل انتظامات کیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی کے فل انتظامات کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد اور ایئرپورٹ کے جو جتنے داخلی اور خارجی راستے ہیں اس کے حوالے سے مکمل انتظامات کیے گئے ہیں۔ یہاں سے کنونشن سینٹر سے جب یہ ایونٹ اپنا اختتام پذیر ہوگا تو جو وزیر خارجہ ہیں اور سیکرٹری جنرل جو ہیں SCO کے، وہ میڈیا ٹاک کریں گے۔ وہ اس ایونٹ کے حوالے سے چیدہ نکات جو اس کے اندر طے کیے گئے تھے یا طے کیے جائیں گے اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ جو آج کا ایجنڈا تھا اس کے حوالے سے وہ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ میڈیا کو آگاہ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا اعلامیہ جاری کیا جائے گا، اور اعلامیہ کے جاری ہونے کے ساتھ ہی فارملی جو ہے وہ SCO سمٹ جو ہے وہ کلوز ہو جائے گا، اور اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے ان کی جانب سے زہرانہ بھی دیا جانا ہے، ان کی ملاقاتیں بھی ہیں۔ جو ڈیلیگیشن لیول کے کچھ اگر معاملات انفرادی طور پر اگر وزارتوں کے اور اس کے وزارت خارجہ کی جانب سے کوئی انگیجمنٹ رکھی گئی ہوگی تو وہ ہوگی، ادروائز ان کی روانگی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس جاری ہے۔ SCO اجلاس میں رکن ممالک خطاب کر رہے ہیں۔ حمید لنگرا رپورٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔